परमेश्वर का वचन है जो पूरी दुनिया को एक समान मानता है। The Bible says in Hebrews 1 verse 3, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पुस्तक में, Hebrews 1 verse 3, who being the brightness, speaking of Jesus Christ, of his glory, the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on high. It says, very important, he upholds all things by the word of his power. Hebrews 1 3. इब्रानियों 1:3 में कहता है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमान्वित के दाहिने जा बैठा है। यानी ये जो परमेश्वर का वचन है ये सबसे सामर्थी माना गया है। Secondly, the book is absolute truth. और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर का वचन जो है ये 100% सत्य है। Thy word is truth, the Bible says in John 17:17. परमेश्वर का वचन यूहन्ना 17:17 में बताता है कि तेरा वचन पवित्र है। It says in Psalm 119 verse 151, all thy commandments are truth. भजन संगीता 119 का 115 में कहता है कि आपकी तेरी सारी आज्ञाएं जो हैं वो सत्य हैं। Thirdly, the Bible enlightens you. We just talked about it. और तीसरी बात जो ये है, परमेश्वर का वचन आपको गाइड करता है। The age of enlightenment was a result of the Bible being open and available to many people in Europe. परमेश्वर का जो वचन है वो हर एक व्यक्ति के लिए सामर्थ्य रूप से कार्य करता है, चाहे वो आप यूरोप में भी देख सकते हैं। We read in Psalm 119 verse 130, the entrance of thy words giveth light. जिस प्रकार से हम भजन संगीता 119 का 113 अगर हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है तेरे वचन में प्रकाश है। And the book can judge your intents, your motives of heart when you come to God. परमेश्वर का वचन जो है वो आपको जांचता है, आपको परखता है जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। The Bible says in Jeremiah 6 verse 19, Hear, O earth, behold, I will bring evil upon this people, even the fruit of their thoughts, because they have not hearkened unto my words, nor to my law, but rejected it. Jeremiah 6 verse 19. यर्मिया 6 का 19 में लिखा है, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को उन्हें निकम्मा जाना है। The Bible says in Hebrews 4 verse 12, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of soul and spirit, of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebrews 4 verse 12. इब्रानियों की पुस्तक 4 का 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार में से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुर्दे गुर्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। And this book can discern and expose all false teachers, Christian or non-Christian. और ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमें हर प्रकार की झूठी शिक्षाओं के विषय में भी बताता है, चाहे वो मसीहों में हो या गैर मसीह के बीच में हो। The Bible says in Isaiah 5 verse 20, Woe unto them that call evil good and good evil, that put darkness for light and light for darkness, that put bitter for sweet and sweet for bitter. यशाया 5 का 20 में कहता है, हाय उन पर जो बुरे और भले और भलों का बुरा करते, जो अंधियारे और उजियालों को अंधियारा करते और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा
मानते हैं। And it shows you also if nations are against God, they are against His word. मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, अगर कोई देश परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो याद रखे परमेश्वर भी उसके खिलाफ है। Isaiah chapter 8 verse 20, Isaiah chapter 8 verse 20, to the law and to the testimony, if they speak not according to His word, it's because there is no light in them. यशाया 8:20 में कहता है, व्यवस्था और चितौनियों की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाप ठहरेगी। One of the reasons why Nepal is economically not on the same level as Northwestern Europe is because there never has been a great influence of the Bible in Nepal. एक और वजह यह है कि जो नेपाल है वो एक अच्छा स्तर पर इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर का वचन को नेपाल ने सही रीति से नहीं अपनाया, इसलिए वो यूरोप के लेवल से बहुत ही नीचे स्तर पर माना जाता है। Many people have changed the truth of God into a lie. बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के सत्य के वचन को झूठ में बदल दिया है। And because of that, God has taken away His blessing from a nation. यही वजह है कि परमेश्वर ने इस देश से अपनी आशीषों को वापस ले लिया है। These are people who hold the truth, the Bible, in unrighteousness. ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में नहीं लाते। And even in many Bible schools and seminaries, they corrupt the words of God. यहां तक कि बहुत सारे बाइबल की शिक्षा देने वाले जो विद्यालय हैं, उन्होंने परमेश्वर के सही वचन को बदल करके झूठी शिक्षाओं का प्रचार करना और सिखाना शुरू कर दिया है। So, before I forget, if any of you is interested in some more Bible teaching and training, और आगे बढ़ने से पहले मैं भूल जाऊं, इससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप में से कोई ऐसा है जो बाइबल की शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहता है, बाइबल कॉलेज में पढ़ना चाहता है? based on the King James Bible in English, और जो अंग्रेजी भाषा का जो KJV बाइबल है, क्या आप में से कोई उसका ट्रेनिंग लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है? तो अपने हाथों को आप उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप शिक्षा को ले, परमेश्वर के सही वचन का शिक्षा आपके जीवन में लागू हो, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। उठाइए। or the equivalent in Nepali King James, Bhojpuri King James text in the New Testament, और यदि आप he is willing to study, then you can let us know. I'll send you a link and you can study online as well as with Brother Daniel. और धन्यवाद भाई, आप में से इतने सारे लोगों में से एक व्यक्ति सहमत है। आपको सर लिंक बता देंगे जहां से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। और भी कोई अगर घर बैठे पढ़ना चाहता हो तो अपने हाथों को उठा सकते हैं। They all need to study online. They thought they offline need to go and study. Now, online is possible, yeah, in English and also in time in Nepali we have a material. तो आपके पास अंग्रेजी भाषा में भी जो कॉपी है दे दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा के साथ साथ नेपाली भाषा में भी जो नोट्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। तो आप में से कितने लोग रुचि रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं? एक बार फिर से हाथ को उठाएं। जितने लोग पढ़ना चाहते हैं, they are the men's. Okay. Okay. Thank you. We'll धन्यवाद। get your contact later there. हम आपसे संपर्क करेंगे बाद में। और एक और बात जो सर ने कहा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो नेपाली नया नियम और भोजपुरी नया नियम को चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको मिले आपकी कलीसिया के लिए? How many of them can read English and understand it? आप में से कितने लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा इंग्लिश बाइबल को पढ़ सकते हैं? हाथ उठाएंगे। 3 4 5 6 Okay, thank you. The Bible is a survival kit if you come on an island without anybody. परमेश्वर का जो वचन है वो एक बहुत अच्छे प्रकार का भोजन के समान है। जब आप किसी भी देश में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। First of all, the Bible says in Ephesians 6:17, it's the sword of the Spirit. सबसे पहली बात आप याद रखना, इफिसियंस 6 में परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन एक छड़ी के समान भी है। Secondly, it says in Jeremiah 23:29, it's a hammer and a fire.
और जरमया 23 में बताता है कि परमेश्वर का जो वचन है ये एक हथौड़े के समान भी है। It's called nails and goats in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 11. और इक्लेसियास की पुस्तक में बताया जाता है ये एक नील के समान है। It's a mirror in James 1:22. और याकूब 1:22 में बताता है यह एक मिरर के समान है। It's a lamp for light in your life in Psalm 119 verse 105. और भजन संहिता 119 का 105 में बताता है परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक दीपक के समान है। And it's a complete nourishment for a man according to Job 28 verse 12. Job 28:12. Where shall wisdom be found? Where is the place of understanding? Job 28 verse 12. याकूब की पुस्तक 28 अध्याय उसका 12वां वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक 28 अध्याय उसका 12वां वचन, परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है। So wisdom is connected with the Word of God. बुद्धि जो है वो परमेश्वर के वचन से जुड़ी हुई है। Understanding is wisdom applied in your personal relationship with Jesus Christ. समझ आपको तब मिलेगा जब आप अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करेंगे। This book is connected with water which cleanses you in Ephesians 5:26. ये परमेश्वर का जो पुस्तक है ये उस जल के समान है जो आपका शुद्धिकरण करता है इफिसियों की पुस्तक के अनुसार। This book is connected with milk for a young baby to grow in 1 Peter chapter 2 verse 2. पहला पत्रस 2:2 में लिखा है कि ये जो पुस्तक है परमेश्वर का जो वचन है ये बच्चों के लिए एक दूध के समान भी है। It's compared with honey in Psalm 119 verse 103. भजन संहिता 119 में 113 के अनुसार परमेश्वर का जो वचन है वो एक शहद के समान है। We read in Psalm 119 verse 103. आइए How पढ़े। sweet are thy words unto my taste, yes, sweeter than honey to my mouth. Psalm 119 verse 103. भजन संहिता 119 का 103, तेरा वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। It's connected with, likened to apples, the Word of God. और परमेश्वर का जो वचन है ये एक सेब के समान भी है। Proverbs 25 verse 11 says, a word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver. 25 verse 11. नीति वचन 25 का 11। नीति वचन 25 का 11, जैसे चांदी की टोकरिया में सोने के सेब हो वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। And finally, it's likened to meat, strong meat in Hebrews chapter 5 verse 12. और इब्रानियों की पुस्तक 5 का 12 के अनुसार परमेश्वर का जो वचन है ये एक मजबूत मांस के समान है। It tells you how to live and how to die. ये आपको बताएगा कि किस प्रकार से जीवन जीना है, किस प्रकार से मरना है। It tells you what to do with your income. और यहां तक कि परमेश्वर का वचन ये भी बताएगा कि किस तरह से आप अपना आमदनी कमा सकते हैं। It shows you how to handle health or family or economic problems. और ये आपको परमेश्वर का वचन बताएगा किस प्रकार से अपने आप को संभालना है, अपने परिवार को चलाना है। It shows you how to deal in times of persecution and tribulation. यहां तक कि परमेश्वर का वचन आपको यह भी समझाएगा कि सताव के समय किस प्रकार से अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। And it shows you basically why you're here. यहां तक कि परमेश्वर का वचन आपको यह भी बताएगा कि आप यहां किस लिए हैं। This book gives you patience, comfort and hope. ये परमेश्वर का वचन आपको आशा, उम्मीद और भरोसा दिलाता है। And most of all, it tells you how to have eternal life as a present possession. और सबसे खास बात अभी के वर्तमान समय में आपके जीवन में उद्धार कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं वो भी आपको बताता है। It says, he who has the Son has life, and he doesn't have the Son of God does not have life. यहां तक कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है अगर जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, यदि किसी के पास पुत्र परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो उसके पास जीवन भी नहीं है। This book can save your soul. ये पुस्तक आपके
प्राणों की रक्षा कर सकता है। Look at James chapter 1 verse 21. There's important references to look at and write down and memorize. आइए पढ़े याकूब की पुस्तक पहला अध्याय। ये बहुत ही खास वचन है, इसको आपको पढ़ना भी है और हर एक को याद भी रखना है। James 1:21, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. James 1:21. याकूब 1:22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। Secondly, this book can give you the new birth. यहां तक कि ये वचन आपको नया जीवन भी देता है। 1 Peter chapter 1 verse 23 says, you're born again not of corruptible, but of incorruptible seed by the word of God which liveth and abideth forever. परमेश्वर का वचन पहला पत्रस 3 में बताता है कि आपका जो जन्म है वो पाप में नहीं, लेकिन पाप से अलग आपका नया जन्म हुआ है। Thirdly, it can help you grow as a believer. और तीसरा बात यह, परमेश्वर का वचन आपको एक विश्वास योग्य आगे बढ़ने में मदद करेगा। We read in 1 Peter chapter 2 verse 2, as newborn babes desires the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. फर्स्ट पीटर Peter chapter 2 verse 2. पहला पत्रस 2:2 में यहां इस प्रकार से लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। It says there, they may grow up unto salvation. नो Oh, that's good. That's a good reading there. जो KJV That's okay there. explain? No, don't have to explain. Then it can build you up in Acts 20 verse 32. और वो आपको और भी बढ़ा सकता है प्रेरितों के काम में जो लिखा है। हम प्रेरितों की पुस्तक की ओर जाएंगे। Acts 20 verse 32, and now brethren, I command you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Acts 20 verse 32. प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 32वां वचन, और जब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। Then it can strengthen you. और वो आपको सामर्थ्य देता है। We don't read it, Psalm 119 verse 28. भजन संगीता 119 का 28। The word of God cleanses you. परमेश्वर का वचन आपको पवित्र करता है। We read the reference already, Psalm 119 verse 9. और आपने पहले से पढ़ा भजन संहिता 119 का 9। The word can sanctify you, set you apart, make you holy. परमेश्वर का वचन आपको पूरी रीति से निर्मल करता है और पवित्र करता है अपने लिए। John 17:17. यूहन्ना 14 का 14। Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. लोगों को पवित्र करे, क्योंकि आपका वचन पवित्र है। And finally, the book can preserve you forever. और लास्ट में जो बातें हैं, परमेश्वर का वचन आपको हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है। 1 Peter chapter 1 पहला पत्रस का पहला अध्याय verse 25, the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Verse 25, verse 1 Peter chapter 1. पहला पत्रस 1 का 25 वचन, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, और यही सुसमाचार का वचन जो तुम्हें सुनाया गया था। All other religious books don't have these characteristics you just were given from the word of God. और अलग अलग जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उनमें इस प्रकार की बातों को नहीं लिखा गया है जो कि परमेश्वर का वचन आपको बताता है। You say, how can you know this is the true book and all the religious other books are not right? आप कैसे कह सकते हैं कि जो वचन आपके पास है ये सत्य का वचन है और बाकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो सत्य का वचन नहीं है? It's very simple. बहुत सरल रीति से, By their fruits you shall know them. उनके फलों के द्वारा आप उन्हें जानने पाएंगे। Look at the economic development of countries with the Bible and those who where the Bible never had a great influence.
और आप देख सकते हैं उन लोगों के बीच में अंतर, वह लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उसके अनुसार चलते हैं, और वो लोग जो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते और उनके अनुसार नहीं चलते हैं। I tell you one thing, when a nation where the Bible has not had a great influence, women are worth nothing. और जो परमेश्वर का वचन का खास तौर पे आपने देखा होगा, जो देश परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उनकी स्त्रियों में देखा होगा आपने अच्छा बढ़ोतरी नहीं है। Where the Bible comes in a nation, the woman becomes an important person of equal value as the man. और जब आप देखते हैं किसी भी देश में परमेश्वर का वचन पहुंचता है तो उस देश में स्त्रियों को भी वैल्यू दिया जाता है, माना जाता है, जितना कि आदमियों को इज्जत होता है। There is social help for widows, help for orphans in countries where the Bible becomes a major influence in a nation. और जिस देश में परमेश्वर का वचन सही रीति से काम करता है, उस देश में आपने देखा होगा विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, गरीबों के लिए खाने का और भी बहुत सारी चीजों का व्यवस्था किया जाता है। So if you want God's blessing on your life and your family and your church and your country, और यदि आप परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, अपने पत्नी के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में या अपने देश के जीवन में, तो you have to stick with the words of God. आपको परमेश्वर के वचन के साथ खड़ा रहने की आवश्यकता है। He will never leave you nor forsake you. ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही कभी त्यागेगा। And when you're called to be a pastor to your own people and here in Nepal, और जब आप अपने लोगों के नजरों में एक सेवक का नाते खड़ा होते हैं, यानी अपने नेपाल में, that's the greatest calling God can give you. और ये सबसे महान कार्य है, महान नाम है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। Now, and don't forget, the greatest attack of the devil is on the words of God. कभी ना भूले कि जो शैतान है उसने परमेश्वर के बहुत सारी वचनों को बदल करके हटा दिया है। So from the beginning, the devil tries to imitate and change, add or subtract from the words of God. आदि में ही शैतान जो है परमेश्वर के वचनों को बदलना और हटाना शुरू कर दिया था। And look at Genesis chapter 3. आइए देखिए उत्पत्ति का 3 अध्याय में। Sin started with mankind by changing the words of God. मनुष्य के बीच में पाप तभी शुरू हुआ जब परमेश्वर के वचन को बदल दिया गया। Look at Genesis 3:1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. He said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? इस बाइबल में उस रीति से नहीं लिखा, लेकिन केजेबी के हिंदी में लिखा है कि उत्पत्ति 3:1 में यहोवा परमेश्वर ने जितने वनेले पशु थे उन सब में सर्वधूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें कहा कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना? So it starts positively, yea, and then change. Yeah, and then it's changed. Yeah. जो सर ने इंग्लिश पढ़ा उसमें कहता है, हाँ परमेश्वर ने तुम्हें किसी भी वृक्ष का फल खाने से मना किया है, जो कि इसमें बदल कर लिखा है, क्या ये सच है? And we see the first thing the woman does in verse 2 is when she answers the devil, she says, we may eat of the fruit of the trees of the garden, verse 2 of Genesis 3. और 3:2 में हम देख सकते हैं सबसे पहला बदलने का काम स्त्री ने किया। यहां पे वो सांप से कहती है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं। Because look at the original quote in Genesis 2 verse 16 and 17, where the Lord says in Genesis 2:16, of every tree of the garden thou mayest freely eat. The word freely is taken out. और उत्पत्ति 1 का जब 16 हम पढ़ते हैं, वहां देखिए वहां सही रीति से क्या लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया कि तू इस वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके यानी कि फ्री में खा सकता है। So first thing you learn is that the modern Bibles have omitted over 2,000 words from the original text. सबसे पहली बात आप याद रखना, जितने भी अभी जो बाइबल आए हुए हैं उसने परमेश्वर के वचन में से 2000 शब्दों को बदल दिया है।
And the second thing what happened is she adds to the word of God. और दूसरी बात जो हम यहाँ पढ़े हैं वो क्या देखें, उसने परमेश्वर के वचन में जोड़ा, जो कि हमने प्रकाशित वाक्य में लिखा पढ़ा था कि नहीं जोड़ना चाहिए. She adds the word touch. और उसने यहाँ कहा ना तो हम उसे खा सकते हैं ना ही छू सकते हैं, छूना उसने ऐड किया. Look at Genesis 3:3. God said, "You shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die." Neither shall you touch it is not an original commandment. और 3 जब आप पढ़ते हैं वहां लिखा है, पर जो वाटिका 3:2, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उस फल के विषय में लिखा है ना तो तुम इसे खाना और ना ही उसे छूना. In other words, what we see here is that she adds something to it, she subtracts something to it, and then she takes and eats of it. और यहां पे हम देखते हैं कि उसने क्या किया, पहले ऐड किया और फिर उस फल को खाकर चेक किया और फिर उनके जीवन में पाप उत्पन्न हुआ. So practically in your situation in Nepal and here in India, और आपके समय काल में भी, चाहे आप नेपाल में हैं या इंडिया में हैं, the average New Testament of the Bible societies omits about over 2,000 words in the New Testament alone. और जो आपके पास वचन है अभी BSI का या नेपाली, उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 2000 परमेश्वर के वचनों को बदल दिया गया है. And it has, the devil has is called the great imitator. शैतान को जो है वो बहुत ही बड़ा कॉपी करने वाला, नकल करने वाला बताया गया, वो परमेश्वर का नकल करता है. Look at 2 Corinthians. आइए पढ़े 2 कुरिन्थियों की पुस्तक में. 2 Corinthians chapter 11 verse 4. 2 कुरिन्थियों 11:4. Brother Daniel, when shall we take a break? Take a break now, and then we go till what time for lunch? Okay, 10 o'clock. Okay, we can take a break. Well, let's finish this part, and then we take a break. इस वचन को पहले हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम ब्रेक और जाएंगे. 2 Corinthians 11 verse 4. For he that cometh preaching another Jesus, whom we have not preached, and if we receive another spirit which ye have not received, or another gospel which ye have not accepted, ye might well bear with me. 2 कुरिन्थियों 11:4. यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उससे सह लेते हो. So the devil has his own Jesus, a false spirit, not the Holy Spirit, and a false gospel. तो यानी कि शैतान के पास उनका खुद का यीशु है जो कि हमारा यीशु नहीं है. उनके पास खुद की आत्मा है जो शैतानी का आत्मा है, जो कि पवित्र आत्मा नहीं है. उनके पास खुद का अपना झूठ बोलने वाले भविष्यवक्ता भी है. He's the great counterfeiter or imitator. और वो बहुत ही बड़ा नकलची है. वो परमेश्वर के वचनों को और परमेश्वर की नकल करता है. Look at verse 14. No marvel, Satan himself is transformed into an angel of light. और उसी 11 का जब 14 को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है. So the devil has apostles in verse 13. और 13वां वचन पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरित के रूप धारण कर लेते हैं. Then he has false ministers, verse 15. और उनके पास झूठे सेवक भी हैं. जब आप 15 वचन को पढ़ेंगे तो He has a false church called a whore in Revelation 17. और उनके पास झूठी कलीसिया भी है, जो कि प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में हम देखते हैं. And then, of course, he has a false Bible. यहां तक कि उनके पास झूठा वचन यानी कि पवित्र शास्त्र भी है. He said, when did that corruption of the Bible start? और उन्हीं के द्वारा परमेश्वर के वचन में मिलावटी और चेंज करना शुरू हुआ. It started in Genesis chapter 3, 6,000 years ago, when the devil said, "Yea, hath God said to Eve." और सबसे पहले शैतान ने 3000 साल पहले किया, और वो भी उत्पत्ति 3 अध्याय में जो देखते हैं, शैतान बोलता है हाँ परमेश्वर ने कहा है. And we see in the New Testament, in 2 Corinthians chapter 2, verse 17, that Paul says, "We're not as many which corrupt the words of God."
परमेश्वर पौलुस ने कहा कि परमेश्वर के बहुत सारे वचनों को ऐसा है जो बदल दिया गया है। दूसरा कुरिन्थियों में हम देखते हैं। So after the break, we continue with this chart you see here. और अभी जो हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आ करके इस चार्ट के साथ लगातार अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। And you have a copy of that, I think. Brother Daniel translated this into Bhojpuri, or I think Bhojpuri it is right there, not Nepali, Bhojpuri. और इन सारी बातों को हमारे बीच में भाई दानियल है, Okay, जो नेपाली? सिर्फ भोजपुरी में या नेपाली में आपको बताएंगे। And this chart will explain you the false line, which is this line of corruption. और ये चार्ट आपको बताएगा कि ये जो लाइन है अंधकार के विषय में, अंधकार युग, That omits 2,000 words in the New Testament alone. और जो लगभग 2000 वचन हैं जो बदल दिए गए। And the manuscripts upon which these false New Testaments are constructed. और जो परमेश्वर का जो वचन को बदल करके झूठा वचन का जो शुरुआत हुआ, Have the apocryphal books उनके as part पास- of the scriptures in the Old and the New Testament. और उनके बाइबल में अपोकर्फल किताब करके 14 किताबों को और जोड़ा गया है। They're called Vaticanus, Sinaiticus, and Alexandrinus. और उसमें वाटिकानस और ये जो नाम है 3 PXA करके लिखा है। And here on the top you have the right line of Bibles. Here, and this is the line of revivals, mission movements, and enlightenment. और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं लूका का, यूहन्ना का, ये वो लाइन है जहां से परमेश्वर का सही वचन निकला और लोगों तक सही रीति से पहुंचाया गया। And this line is the book of the New Testaments we will give you, and I've given you in Nepali already. और ये वो बातें हैं जो कि आपको दिया जाएगा और नेपाली में पहले से ही दिया गया है। And that's the best Bible, the Bible of the Nestorians in the 4th, 5th century, the Bible William Carey, and the Bible we give you back from these two former groups of people. विलियम कैरी के द्वारा जो अनुवाद किया गया तीसरे चौथे समय में, और वो आपके पास भी पहुंचाया गया, और उस बाइबल को आपको सही रीति से इस्तेमाल करना है। And at the end, I think did you already receive? Everybody receive a Bhojpuri New Testament already? Okay. So we'll explain this chart after the break, and then we're going to talk about some of the differences between the books, Bibles of the Bible Society, which are from this line, which are corrupted, the Catholic. Only 1% of the manuscripts has that. And the Bible we give you, which is 99% of the manuscript evidence, which has it. और आपके पास पहले से ही भोजपुरी बाइबल आपको दे दिया गया है, तो हम इस पे विचार करेंगे और बात करेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर के सही वचन को बदल दिया गया है वो रोमन कैथोलिक के द्वारा। लेकिन एक ही लाइन है जो बाइबल आपके पास दिया गया है, जो परमेश्वर का सही वचन है, सत्य का वचन है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। All right, let's take a break here and then continue after the break. ठीक है, अभी आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलेंगे।